Okay, a very good evening to one and all. Hope my screen is visible and I'm audible to everyone. ये जिसका भी फोन है जी Moto G3, इसको रीनेम कर लीजिएगा Moto G345G, उसका भी है because device name is not allowed. Right. So today we are starting with the discussion of you call it as December 2024, but I would call it as January 21st 2025, the paper which happened in January 2025. राइट जो लेटेस्ट पेपर आपका है एनटीए नेट जेआरएफ का एंड दिस इज समथिंग व्हिच ओनली एएसएस साइंस फाउंडेशन राइट इन सो मच ऑफ डिटेल सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर द student of academy that they can read and take benefit out of it, and I'm sure that in this exam also, which you call it December, which you call as June 2025, many of the questions you will find out of these 100 questions or on the same theme. So doing this PYQ discussion is really beneficial for the students. So without wasting any further time, let's start with the same. And as you can see that we will be discussing each and every questions with a bit of detail of the exam, which basically happens in January 2025, which people are popularly knowing as like December attempt, right? Because it was scheduled in December, but took place in January. So we are discussing paper 2 with all the details of each and every questions, right? It have been already handed over to all of you for the maximum possible use as much as you can do, because that will definitely help you out in the upcoming exam. So this question, when I talk to students and I see this question, I was surprised. These are exactly the same lines of our booklet written in ecology. The same line, all these steps are written there in our booklet, right? So if you see question number 51, you can see here that it says match the list 1 and 2. In list 1 the process have been given, and list 2 the outcomes have been given, or you can say that simply the definitions have been given which should be there. So अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिंपलिस्टिक वे में पकड़ता सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन को, क्योंकि मुझे पता है कि जो नाइट्रिफिकेशन होता है इट इज नथिंग बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। मुझे ये तो पता ही है, ठीक है, कि जो आपका अमोनिया है उसका नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है वाया टू स्टेप। फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट। द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो मुझे ये तो पता चल गया कि जो बी है दैट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी विथ फर्स्ट। ये जो बी है ये 1 को कंट्रीब्यूट करेगा, इस पे मैं 110% श्योर हूँ। और मैच द फॉलोइंग में जिस चीज पे आप 100% श्योर है, पहले आपको उसकी सर्च करनी है, बाद में और चीजों को देखना है, राइट? तो मेरे हिसाब से B1 पे तो मैं अश्योर्ड हूँ कि B1 तो है ही 110%। तो मुझे B1 वाले ऑप्शंस को देखना है, और लकीली आपके पास एक ही चॉइस ऐसी है जिसमें आपको B1 दिख रहा है। ये भी नहीं है B1, ये भी B1 नहीं है। ये मैं आपको टाइम सेविंग ट्रिक बता रहा हूँ दैट हाउ यू कैन सेव योर टाइम। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसपे आप 100% श्योर है, जो B1 है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम से आया हुआ है, बुकलेट का ही क्वेश्चन है, डायरेक्टली इकोलॉजी में बुकलेट में ये मेंशन है चारों टर्म्स, राइट, विच हैव बीन मेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे लिए अब ये फिर बहुत आसान हो जाता है मिलाना इस चीज को, राइट? तो देन वी कैन डू इट वेरी इजीली दैट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट it is the conversion of nitrogen into ammonia with the help of those microbes. So A will go to 3. B हमने देख ही लिया है कि conversion of ammonia into nitrate, which will go to 1, right? Then C, which is immobilization, right? So that is basically incorporating of inorganic nutrient elements into organic forms. And mineralization, as I told you, conversion of complex substances into simple carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. So this is basically the convergence of elements from organic to inorganic form. तो मेरे पास करेक्ट आंसर जो 51 क्वेश्चन है उसका आ जाएगा जी आपका थर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी लेवल पे रखूंगा इस क्वेश्चन को, ये टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये 12th लेवल के क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था 12th लेवल का था, इससे ज्यादा लेवल को ग्रेड मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन के। क्लियर है सबको?
Detailings and all the briefings have been done below with the question कि biological nitrogen fixation क्या होता है, ये आपको पता ही है. That this is the process where certain microorganism convert atmospheric nitrogen into ammonia, which is a form of nitrogen that plant can use, and that's why it have been matched with 3. Nitrification, all of you are aware that two-step process, right? First ammonia will get converted into nitrite, and then the nitrite will convert into nitrate, which is called as nitrogen fixation. So it will go to 1. And immobilization is the process occur when inorganic nutrients as nitrogen are taken up by microorganisms like bacteria and fungi that incorporated into their organic compounds, right? तो ये भी हमें पता है कि immobilization क्या होता है. और लास्ट में mineralization भी आपकी बुकलेट से ही है, where you have the conversion into the simplistic substances. So this is the reverse of immobilization. During mineralization, the organic matter in the soil from dead plant animal microbe is decomposed by microbe, releasing the inorganic nutrient elements, simple carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, including nitrogen in the form of ammonium. Therefore, the outcome of mineralization is to like we can convert these substances. तो आई गेस ये सबको क्लियर है. बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, है ना. और दोबारा भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है बिकॉज इट इज डायरेक्ट कनेक्शन विद द नाइट्रोजन साइकिल. डायरेक्ट कनेक्शन में है नाइट्रोजन साइकिल के साथ ये क्वेश्चन, तो नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा सा आप अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंस दें. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं गाइज. ये भी अगेन आपका जो क्वेश्चन है, ये अगेन आपका आ रहा है इकोलॉजी से, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी. ठीक है ना. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 से अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूम बाय हर्बीवोर. तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि कहाँ पे हर्बीवोर जो है, ठीक है, ज्यादा एनपीपी कंज्यूम करते हैं. दैट इज द पॉइंट व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि कहाँ पे हर्बीवोर ज्यादा एनपीपी को कंज्यूम करता है. आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना ठीक है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करना है ना. तो ये बात आपको सबको ध्यान रहे जब ये ऑप्शन दिए हुए फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटीज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रूव्स, ग्रासलैंड. तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो हम पढ़ाते भी आपको फूड चेन में कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो काफी सारे खाए जाते हैं बाय जू प्लैंक्टन. तो ये बात तो सबको क्लियर रहनी चाहिए थी कि भाई फाइटोप्लैंक्टन्स कम्युनिटीज जो है उनको काफी ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करना है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कंजम्पशन के. ठीक है, हर्बीवोर जैसे जू प्लैंक्टन है. तो यहाँ पे एक हिंट मेरे पास ये जू प्लैंक्टन वाला था, इससे मुझे पता चल गया कि ए मैक्सिमम होना चाहिए. ए मैक्सिमम खाली एक में ही है, विच इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटीज जो है वो सबसे ज्यादा खाई जाती है बाय जू प्लैंक्टन इन टर्म्स ऑफ द एनपीपी. ठीक है, उसके बाद बारी आती है ग्रासलैंड में भी काफी ज्यादा आप देखते हैं ग्रेजिंग होती है, लेकिन वो नंबर 2 पे है ग्रासलैंड, राइट. देन उसके बाद आपके आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और सबसे लास्ट में आते हैं मार्श मैंग्रूव्स, आपके जो मार्शलैंड भी आपके कहलाते हैं मैंग्रूव्स जो है. ठीक है, तो ये तो इसका ऑर्डर हुआ. इसके लॉजिक्स पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भाई करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 2. वैसा हुआ क्यों, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 52 इज 2. ए सबसे ज्यादा है. इस ऑर्डर को चूज करने का मीनिंग क्या है कि ए इज हैविंग मैक्सिमम, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय सी. ये ध्यान रखिएगा. तो ए में कंजम्पशन सबसे ज्यादा है. इट मींस टू से फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में खाए जाते हैं, है ना. Now let's have a look at the detailing or the briefing which have been given logically behind this question. तो ये तो सबको आपको पता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वन लाइनर्स में ही हमने सबको दिया है. तो मैं फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन की बात करूं तो एज पर द डाटा, फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटीज की जब मैं बात करूंगा तो एज पर द डाटा इफ यू गो, तो यू कैन सी दैट फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटीज में परसेंटेज ऑफ एनपीपी कंज्यूम बाय हर्बीवोर 60 to 90%, करीबन करीबन 60 से 90% जो है, ठीक है, वो कंज्यूम करते हैं एनपीपी की फॉर्म में. इन एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक ओशियन एंड लेक, जू प्लैंक्टन हर्बीवोर कंज्यूम अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी. दिस इज बिकॉज
फाइटोप्लैंक्टन है स्मॉल एंड द प्रोड्यूस क्विकली एंड इजीली ग्रेस। तो तीनों ही रीजन है इसमें, एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इजीली उनको ग्रेस किया जा सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी उनकी संख्या बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड रैंकिंग पे, तो सेकंड रैंकिंग पे आपके आ जाएंगे ग्रासलैंड, ठीक है, विच आर लाइक समथिंग वेयर यू हैव द प्रोडक्टिविटी ईट अप इन द रेशियो ऑफ 30 to 60। ग्रासलैंड में भी क्या है, herbivore like grazing mammals and insect consume a large portion of NPP because grasses are relatively easy to eat and grow quickly and the percentage depends on grazing intensity, कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा उतना ही वो ग्रो भी अच्छा करेंगे, ठीक है, क्विकली रिप्लेनिश करेंगे। तीसरा जो इसमें कैंडिडेट आता है जी, वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, विच इज हियर लेस देन 5% के आसपास होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इनका दोनों का सेम ही है, मैंग्रूव और इसका, है ना, लेकिन फिर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थर्ड रैंकिंग पे आएगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में ये हाई है, अराउंड 5% उससे लेस। Although tropical rainforests are highly productive, most of the NPP is not consumed directly by herbivore. Instead, it goes into living biomass of tree and become litter and detritus. Herbivores are surprisingly low relative to the total productivity. तो खाने वाले कम होते हैं लेकिन फिर भी कंजम्पशन इतनी तो है। और लास्ट में आपका मैंग्रूव्स आ जाएगा, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एनपीपी कंज्यूम बाय herbivore is 5 to 10. Mangroves have moderate herbivory. Much of the organic matter produced falls into the water and become detritus, supporting detritivores more than herbivore. तो लास्ट में जो है मैंग्रोव इसलिए रखा गया क्योंकि इनका मेन फंक्शन होता है मोर टू सपोर्ट द डेट्राइटिवरस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पे बॉग एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, ऐसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको नहीं मिलता, राइट। और एक ऑप्शन जो इसमें फिट बैठती है वो यही बैठती है कि बी शुड बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही एक है 2, हम दूसरी चॉइस पे किसी पे जा भी नहीं सकते, ठीक है, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज बेसिकली सेकंड, जो आपका 52 है, इसलिए हमने सेकंड चूज किया कि जो ऑप्शन है वो सेकंड क्यों होना चाहिए था, सेकंड होने का उसका एक रीजन है, राइट, कि ए मैक्सिमम है फॉलोड बाय डी फॉलोड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। और यहाँ पे हमने टेबल भी दिया है कि कितना कितना परसेंटेज है, तो फाइटोप्लैंक्टन में आप देख सकते हैं 60 to 90 के आसपास है, वेयर एज ग्रासलैंड 30 to 60, देन वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रूव्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको क्वेश्चन। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 52, क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे गाइस बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें जल्दी बताइए फटाफट से। प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हाई होती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, उसमें पूछा है किस इकोसिस्टम में ज्यादा एनपीपी को हर्बीवोर कंज्यूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूम बाय हर्बीवोर, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि जो आपके पास वहां पे प्रोड्यूसर्स है उनकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसको किस ऑर्डर में कंज्यूम किया जाता है। पूजा को क्लियर है, हाँ जी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है नो डाउट, बट यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरह का पूछा है, ठीक है, क्लियर है पूजा को। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो शायद मेरे हिसाब से शायद ये फर्स्ट बार आपको दिखा, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि एक या दो हिंट यहाँ पे ये दे गया टीचर ना, ये टीचर ने इसमें हिंट दे दिए बहुत सारे, ठीक है, टीचर ने इसमें हिंट कैसे दे दिए वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो जब भी देखिए क्या होता है कि आप जब भी कोई डाटा एक्वायर करते हैं टाइम सीरीज के साथ, उसका जब पैटर्न देखते हैं आप जनरली, कोई भी डाटा हो, मीटरोलॉजिकल डाटा हो, एयर पोल्यूशन डाटा हो, ठीक है, सीजनल डाटा हो, कोई भी जब आप डाटा देखेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है, ठीक है। यहाँ 53 में आपसे क्या कहता है, लिस्ट वन में आपको कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज और दूसरे में डेफिनेशन दिया हुआ है, इनको मैच करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैचिंग पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है आपका, ठीक है, जैसे इसमें एक वर्ड दिया आपको इन्होंने सीजनल, ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से सबसे कॉमन और सबसे, ठीक है, आसान चीज होती है। जैसे आप ईयर की बात करें
तो ईयर के अंदर भी आपको क्या है कि समर, मानसून, विंटर, ये तीन तो हम मान के ही चलते हैं, स्प्रिंग भी मान लेते हैं, ठीक है। तो सीजनल जो था वो आपका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे सकता था कि आप इजीली उसको जज कर लेते, ठीक है, इजीली जज कर सकते थे सीजनल। देखो क्या है ना, ये मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें एक कोई बहुत इजी हिंट रहता है जिसको आपको स्ट्रांगली ट्रेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सीजनल को मैं यहाँ पे पकड़ सकता था। तो सीजनल की जब बात करते हैं तो आपको भी पता है कोई भी टाइम पीरियड जो पीरियोडिकली चलेगा किसी सीरीज में, दैट इज कॉल्ड सीजनल थ्रू आउट द, व्हाट यू कॉल, थ्रू आउट द ईयर, अलग अलग सीजन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सीजनल है ये आपका फोर्थ को बहुत अच्छा एप्रीहेंड कर रहा है, पीरियोडिक पैटर्न ऑफ चेंज, राइट, इन द टाइम सीरीज विद इन अ ईयर एंड रिपीटेड कंटिन्यूअसली। तो एक पीरियोडिक आपका पैटर्न जो दिखता है उसको हम सीजनल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो अ पीरियोडिक पैटर्न ऑफ चेंज इन टाइम सीरीज विद इन अ ईयर एंड रिपीटेड कंटिन्यूअसली। तो सीजनल पैटर्न मेरा ये है, ठीक है, कि एक साल के अंदर आप अलग अलग तरह का पैटर्न उस चीज का दिखाई देगा, उस डाटा का दिखाई देगा। देन इफ यू गो टू द फर्स्ट वन, ट्रेंड, तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट किसी भी चीज का टाइम के साथ उसके ट्रेंड को कहते हैं कि ट्रेंड कैसा है दिखाओ, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई मुझे डेंगू के केस का ट्रेंड दिखाओ पूरे साल भर का, तो ट्रेंड जो है आपका एक तरह से इट रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन टाइम सीरीज, कि टाइम के साथ कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये आपका ट्रेंड बताता है कि कैसे आपके चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ, विच रिफ्लेक्ट्स अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट, राइट। तो ट्रेंड आपको ये बताएगा कि भाई चेंजेस कैसे हो रहे हैं विच रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन टाइम सीरीज। तो ए आपका टू से बहुत अच्छा मैच खाएगा। देन बी की अगर हम बात करें, साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक की बात क्या करें, अब जैसे देखिए आप वेव्स में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं आपको नॉइस में कि इस तरह का साइनोसॉइडल मूवमेंट होता है। तो ये साइक्लिक नेचर है, ठीक है, साइकिल पूरी रिपीट हो रही है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो साइक्लिक है आपका विच इज द बी, दैट विल डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड, which says an alternative sequence of points above and below the trend line lasting more than 1 year। तो एक तरह का आपको ट्रेंड, ये साइक्लिक पैटर्न देता है, ठीक है, कि पहले हाई होगा फिर लो होगा फिर हाई होगा फिर लो होगा, है ना। और जहां बात आती है आपकी जी ये इरेगुलर की, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट है, विच बेसिकली रिफ्लेक्ट द रैंडम वेरिएशन ऑफ टाइम सीरीज वैल्यू, मतलब एब्रप्ट है, ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग अलग तरह के जो डाटाज होते हैं विद टाइम सीरीज, ठीक है। तो ट्रेंड कैसा है जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट आपको दिखाएगा टाइम सीरीज का, पर इसमें सबसे अच्छा हिंट जो था वो सीजनल था, कि सीजनल इज बेसिकली अ पीरियोडिक पैटर्न ऑफ चेंज इन टाइम सीरीज विद इन अ ईयर एंड इट रिपीटेड कंटिन्यूअसली। तो जो पैटर्न होते हैं वो तो आपको दिखेंगे, चाहे वो टेम्परेचर के देखे, सनलाइट के देखे, है ना। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे आ जाएगा टू, एज पर दीज ऑप्शंस व्हिच हैव बीन गिवन। तो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा टू आएगा, मैच करके यहाँ पे यू कैन चेक, ए ट्रेंड विच गोज विद टू एंड बी गोज टू थ्री, सी गोज टू फोर एंड डी गोज टू वन। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इजी वाले को पकड़ना होता है, और अगर आप उस पर 100% श्योर है तो आपको बाकी के सारे ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे सीजनल पकड़ लिया, सीजनल वाज द इजी हिंट, और सीजनल जो है C4 सिर्फ खाली एक ही ऑप्शन में था, विच वॉज ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाकी किसी में ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। ये एक तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक डाउन या नॉक डाउन करने का। द एक्सप्लेनेशन हैव बीन अटैच हेयर, राइट, कि किस तरह से आपको देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है आपका, है ना। इट हैव बीन मेंशन दैट ट्रेंड कंपोनेंट टाइम सीरीज रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म मूवमेंट और डायरेक्शन डाटा ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड, एंड दिस कुड बी अपवर्ड ट्रेंड इंक्रीजिंग वैल्यू, और डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकते हैं डिक्रीजिंग वैल्यू। फिर साइक्लिक आपको बताया, वेरिएशन इन टाइम सीरीज अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो द लाइन, मैंने आपको बोला एक साल में। सीजनल वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक पैटर्न ऑफ चेंजेस विद इन अ ईयर दैट रिपीट कंसिस्टेंटली ओवर एन ईयर आफ्टर ईयर। तो ये सब आपको पता होने चाहिए इनके बारे में ना, चीजों के बारे में, तो ये जरूर ध्यान रखें। और इरेगुलर का तो आपको है ही, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, नॉइजी भी कह देते हैं, इरेगुलर का एक दूसरा नाम होता है नॉइजी डाटा। इरेगुलर जो है वो नॉइज भी कह देते हैं उसको, कि नॉइज है मेरे डाटा में बहुत ज्यादा। तो जो लोग मीटरोलॉजिकल डाटा के साथ डील करते हैं, या जो लोग एयर पोल्यूशन डाटा के साथ डील करते हैं, तो उनको ये बहुत अच्छे से पता है, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 54, which is the next question in this series.
ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, और ये मैं तो ये कहूंगा कि ये डायरेक्ट आपके बुकलेट में है, क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज क्वेश्चन नंबर 54। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी बहुत टफ नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए जरा ध्यान से। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 54, तो इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एब्जॉर्ब आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है आपकी, तो उसमें आपको ये पता है कि जो जाने वाली रेडिएशंस होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन होती है, ठीक है। तो वो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस होती है, तो उसमें जितनी भी आपकी ये रेडिएशन है, चाहे वो माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, इंफ्रारेड हो, ठीक है ना, वो सारी उसके अंदर आएंगी लॉन्ग वेव रेडिएशंस के अंदर, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है ना, इन द लॉन्ग वेव एटमॉस्फेरिक विंडो, ठीक है जी। तो हमने उस दिन भी बात की थी कि भाई जो एब्जॉर्ब करने वाली रेडिएशंस है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसमें किस किस का नाम आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन को तो मैं वैसे ही ऑप्शन से हटा दूं, ये तो गया, इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी मैं हटा सकता हूँ, इट इज ऑल्सो नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसका भी कोई काम नहीं है। जो फाइट है लोगों के माइंड में, इसलिए फाइट है कि वाटर वेपर या ओजोन। अब मैं आपको बता दूं कि वाटर वेपर हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज वाटर वेपर इज नेचुरल। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैंने तो क्लियर कटली ये ठान लिया था कि ये स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएशन बहुत ज्यादा है और ये नेचुरल है, तो हम इसको काउंट ही नहीं करते। तो मेरे हिसाब से, तो मेरे लिहाज से तो आंसर ऐसे निकल के आ गया कि आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। लेकिन वी हैव टू सपोर्ट इट विद द लॉजिक्स। सो लेट्स हैव सम लॉजिकल डिस्कशन अबाउट द सेम, कि ओजोन क्यों चूज किया ओवर द वाटर वेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम एटमॉस्फेरिक विंडो की बात करते हैं, तो हमने उस दिन भी बात की थी कि 7.5 टू 13.5 के आसपास होती है, या कुछ बुक 8 to 13 में लिख देती है ना, माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो आइडियली स्पीकिंग तो 7.5 to 13.5 माइक्रोमीटर होती है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक विंडो है आपका। तो ऑक्सीजन तो ऑप्शन से ही चला गया, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा इस तरह की विंडो में एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, ठीक है जी। अब जब ये एटमॉस्फेरिक विंडो की बात हो रही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाटर है, वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ आपको दिखेगा। वाटर वेपर इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, पर हम क्यों नहीं इसको लेते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, सॉरी ये एंथ्रोपोजेनिक नहीं, नेचुरल है। तो इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ even within the atmospheric window, where absorption by the gases is minimal and water vapor still exhibits significant absorption, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं देखूं, तो आपको जब डाटा दिया जाता है, या इफ यू रिमेंबर द थिंग, तो दो बैंड इसके हमें दिखते हैं, ठीक है। एक तो लेस देन 8 माइक्रोमीटर, ठीक है, और एक 18 माइक्रोमीटर के आसपास इसका बैंड दिखाई देता है। तो ये लगभग लगभग दोनों ने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक विंडो की वहां डिस्कशन हुई है, तो लेस देन 8 माइक्रोमीटर अगर कह दूंगा तो वो भी कम हो गया आपका, ठीक है, ये आपकी बुकलेट में भी है ना, और एक 18 माइक्रोमीटर पे चला गया, ठीक है। तो ये जो दोनों ही बैंड है इसके, वो काम के नहीं निकले, वो उन्होंने हमें डिच कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बैंड अराउंड 6.3 एंड 13 माइक्रोमीटर भी इसका होता है, लेकिन ठीक है, जो मेन जो एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, उसमें जब आप ओजोन को पकड़ते हैं, तो ओजोन जो है अराउंड 9 माइक्रोमीटर के आसपास जो है, उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिखती है वहां पे, राइट, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड इट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ओजोन हैज अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका काफी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड होता है आईआर रीजन में, और पर्टिकुलरली 9.6 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। जब हमने पढ़ा भी था तो हमने 9 माइक्रोमीटर पढ़ा था कि इसका एब्जॉर्प्शन है। तो डायरेक्टली ये आपका एटमॉस्फेरिक विंडो में आ रहा है। सो देयरफॉर ओजोन इज अ सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन फॉर आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विद इन दिस विंडो। तो इसलिए हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है ओजोन है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये भी है कि ये नेचुरल नहीं है, ये एंथ्रोपोजेनिक है। तो हमारी कंसर्न इसके लिए NO2 कुछ इस तरह का एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
तो ये भी कट जाएगा आपका। तो कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स इन माइंड, जो भी गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वाला डिसीजन है, तो ये आपका ओजोन यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। 9 माइक्रोमीटर या 9.6 माइक्रोमीटर के आसपास इसका होता है। तो करेक्ट आंसर फॉर 54 इज 3। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए फटाफट से। रिस्पॉन्स थोड़ा क्विक रखेंगे बिकॉज वी हैव टू कीप द टाइम ऑल्सो इन कंस्ट्रेन। ऑलरेडी हमने लिटरेचर आपको दे दिया है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि क्यों ऐसा लिया गया है। ठीक है ना? वाई इट इज सो। ठीक है, हमारा पर्पज ये है वाई इट इज सो। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? ऑल द पीपल, अनीश, हिना, करुणा, मैती, मितल, पूजा, प्रीति, प्रिया, शालू, सोनिका, ये जो भी टेक्नो KL8 है, काइंडली रीनेम योर डिवाइस वैदेही। क्लियर है? चलिए जी, आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए, इसमें कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपकी बुकलेट से या कहूंगा स्टडी मटेरियल से या PYQ से आया है। और मैंने ये बहुत बार आपको बताया भी है कि भाई इस तरह का ये क्वेश्चन आता है स्टोक्स लॉ से। ठीक है ना? तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो पहले सीधा क्वेश्चन को देखता। 55 क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम डिपेंड्स ऑन। तो मुझे कुछ नहीं करना था यहाँ पे, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैं सेटलिंग वेलोसिटी का या टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिखूंगा, दैट इज रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा। और ये रो जो हम लिखते थे वो हम जो डेंसिटी ऑफ एयर लिखते थे। ठीक है, लेकिन आइडियली स्पीकिंग जो होता है, इसको मैंने आपको बताया भी था कि इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट डेंसिटी ऑफ मीडियम या जो भी मटेरियल है माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें लेना होता है और बहुत सी किताबों में ऐसा लिखा भी हुआ है। तो अब जो अगर आप इसकी जगह पे ये चीज पुट कर दे तो भैया ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंडेंट है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ मीडियम का हो, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल का हो, एरोजोल का, एक ही बात है ना? तो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल भी वहां पे आ गया, P कहे चाहे M कहे एक ही बात है ना? या मैं कह सकता था डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर, अप्रोप्रिएट जो डायमीटर पे भी ये डिपेंड है, साइज पे डिपेंड है। ठीक है ना? साइज पे डिपेंडेंट है, विस्कोसिटी पे भी डिपेंडेंट है इनवर्सली। तो अब ध्यान से देखिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे तो आपको तो ये सारा ऐसे ही मिल गया करा कराया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है स्मॉल g पे। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंट है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे है, साइज ऑफ द पार्टिकल मतलब डायमीटर पे है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे है, ईटा पे है। तो ये तो आपके सारे ही करेक्ट हो गए, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मतलब सिंपल सा ये फार्मूला देखते ही आपके माइंड में आना था। तो जैसे ही आपने इसको पकड़ा तो इसमें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCDE, और एक ही ऑप्शन है जिसमें ABCDE है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताइए। एनी वन हैविंग एनी डाउट? क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है। देखिए, नीचे हमने एक्सप्लेनेशन उसका फॉर्मली अटैच किया है फॉर योर सपोर्ट ऑफ साइंटिफिक लॉजिक विच कुड बी रिटन लाइक दैट। ऐसे अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी स्टॉक फार्मूले से भी ना लिखूं, स्टॉक फार्मूले से अगर मैं लिखूं तो भी हम लिख सकते हैं दैट 2/9 डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल रो पी, जिसको लिखा हुआ है जो मैंने मीडियम लिखा, माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये टर्म जो है बीच वाली, है ना, आर स्क्वायर। ठीक है, जी बाय ईटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ईटा इज द विस्कोसिटी। तो ये लिखने का तरीका है अपना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस की टर्म में, यही हम यूज करते हैं। और वहां पे अगर आपको याद आया हो तो इसी को अगर देखो ये कैसे आया, इसी को अगर मैं रेडियस को लिख दूं D/2, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये फार्मूला तो अलग है। नहीं, ये अलग नहीं है। अगर आप रेडियस को लिखेंगे D/2 और इस फार्मूले में पुट करेंगे रेडियस की जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा, 2/9 इंटू आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, D² बाय 4। ठीक है, और ये रो पी माइनस रो एम रहेगा, जी रहेगा और ईटा रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, GD स्क्वायर, है ना,
रो एम माइनस रो पी माइनस रो एम डिवाइड बाय 18 ईटा, 9 टू जा 18। तो सेम ही चीज आगे जो मैंने लिखी थी, रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा, यहाँ भी वही चीज आई। तो इसमें घबराना नहीं है, ये तो अलग है। जस्ट अ मिनट गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज द सेम थिंग विच इज जस्ट रिटर्न, द एक्सप्रेशन इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, डायमीटर में लिखते हैं, तो आपके पास वही टर्म आ जाएगी जो मैं अभी लिख के आया हूँ, दैट वीटी इज इक्वल टू रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा। और ये जो डेंसिटी है, इसको हम लिख सकते हैं दैट डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम यहाँ पे आपको पता है एयर रहता है जब एरोसोल की बात करते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? देखिए वही चीज है, मतलब इट्स लाइक कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, इट्स लाइक दे आर जस्ट ट्विस्टिंग द स्टफ अ बिट। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लोग जो कहते हैं ना कि जी अजीब सा पेपर आ गया, अजीब सा इन द सेंस दे आर ट्विस्टिंग द क्वेश्चन, बट आपको कॉन्सेप्ट से स्टिक रहना है। अगर आप कॉन्सेप्ट से स्टिक है, इफ यू आर स्टडिंग द राइट कॉन्सेप्ट विद लॉजिक, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी अश्योरिटी है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर अगर जल्दीबाजी में कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू सी कि वेदर ये सेम ही चीज है, एक्चुअली में सेम ही चीज है। और ये दोबारा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, या पूछ सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डायमीटर के कैसे प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। ठीक है ना, डेंसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, विस्कोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल में है। तो ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जाम। तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। सारी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये जो भी टेक्नो के एल एट है भैया, अपना रीनेम कर ले डिवाइस को, है ना। टेक्नो के एल एट जिसका भी फोन है, अपना रीनेम कर ले उसको, थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वरना फिर हमें सिक्योरिटी रिमाइंडर आने चालू हो जाते हैं टेक्निकल टीम से कि डिवाइस नेम दिख रहा है एक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इजीली सारी चीजें हमने यहाँ मेंशन की गई है कि कैसे कैसे ये करते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी को इफेक्ट करती है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये आपको बस एक लॉजिक समझना है यहाँ पे। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 56, जो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम क्वेश्चन को नहीं देखते, पहले हम कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं जो आपको शायद आनी चाहिए। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन में दी है चारों टर्म, पहले हम उनको सीख लेते हैं कि ये क्या क्या है। एक टर्म यहाँ पे दी हुई है बायो कंसेंट्रेशन फैक्टर, एक दी हुई है बायो ट्रांसफर फैक्टर, एक दी हुई है पार्टीशन कोफिशिएंट, एक दी हुई है टॉक्सिकेंट कंसेंट्रेशन। अब देखिए ये पार्टीशन कोफिशिएंट और टॉक्सिकेंट कंसेंट्रेशन में तो कोई लॉजिक था नहीं, लेकिन जो बाकी की टर्म्स है वहां लॉजिक था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देखेंगे तो पहले भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। जैसे बायो कंसेंट्रेशन फैक्टर है, और ये भी आपका लिखा हुआ है बुकलेट के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बुकलेट 2 में ये दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे बायो एक्युमुलेशन फैक्टर के नाम से भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो बायो एक्युमुलेशन फैक्टर आपको पता है कि जो बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हुआ टू दैट ऑफ इन्वायरमेंट में जितना प्रेजेंट है, तो वो नीचे वाली डेफिनेशन है। और एक बायो कंसेंट्रेशन फैक्टर, या जो हम पढ़ते हैं कि बायो एक्युमुलेशन, तो बायो कंसेंट्रेशन या बायो एक्युमुलेशन आपको बार बार पेस्टिसाइड के साथ में पढ़ाता हूँ कि कितना आपके एडिपोज टिश्यू में एक्युमुलेट हुआ है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द बायो कंसेंट्रेशन फैक्टर, तो दिस इज द रेशियो ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल टिश्यू है आपका, टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द केमिकल इन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, चाहे वाटर हो, चाहे सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड हो, डाइटरी इंटेक हो इन द प्राइमरी एक्सपोजर रूट। तो डाइटरी इंटेक से इसको रिलेट किया गया है कि डेली जितना वो खाता है, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, लैंग्वेज जरूर देखनी है क्वेश्चन की, कि रेशो बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन द एनिमल टिश्यू, जितना एक्युमुलेट हुआ, जैसे हम बात करते थे डीडीटी की, कि कितना एक्युमुलेट हो रहा है जाके एडिपोज टिश्यू में, उसी रेंज में पूछा गया है। तो दैट इज कॉल्ड बायो कंसेंट्रेशन फैक्टर, या इसको हम बायो एक्युमुलेशन फैक्टर भी कह सकते हैं।
ठीक है ना। बायो कंसंट्रेशन फैक्टर, सॉरी इसको बायो कंसंट्रेशन फैक्टर ही कहेंगे, क्योंकि ये खाली बढ़ नहीं रहा है, डाइटरी इनटेक से जो आप ले रहे हैं उसी से डेली आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। एक तो ये हुआ। फिर एक टर्म दी हुई है बायो ट्रांसफर फैक्टर। ये क्या होता है भाई, बायो ट्रांसफर फैक्टर? बायो ट्रांसफर फैक्टर को भी देख लेते हैं, बीटीएफ जिसको आप बोलते हैं। ये क्या चीज होती है? द टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द बायो एक्युमुलेशन फैक्टर। ये है आपका बायो एक्युमुलेशन फैक्टर के साथ साथ जो है, या इसको बायो मैग्निफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्रॉस द फूड चेन चलेगा। ठीक है। बायो ट्रांसफर फैक्टर क्यों बोला? क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा। ठीक है। इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसीलिए बायो ट्रांसफर फैक्टर बोला, या बायो मैग्निफिकेशन फैक्टर बोला, या बायो एक्युमुलेशन फैक्टर बोला। इसके तीनों के एक ही नाम है, ध्यान रखना। चाहे तो आप इसको बायो ट्रांसफर फैक्टर बोलो, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल के अक्रॉस ये ट्रांसफर हो रहा है कंसंट्रेशन, या आप बायो एक्युमुलेशन फैक्टर बोलो, या फिर आप बायो मैग्निफिकेशन फैक्टर बोलो। ये एक ही बात है, ये याद रखना। ये दोबारा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देन इट स्पेसिफिकली रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन विच इज देयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट स्पेसिफिकली रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन अ कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म टू इट्स कंसेंट्रेशन इन द फूड और प्रे। तो जैसे मान लीजिए हिरन की बॉडी के अंदर कितना डीडीटी था, शेर को उसने खा लिया, शेर ने उसको खा लिया, तो शेर की बॉडी के अंदर आ गया। तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इफ द डेली डाइटरी इनटेक इज स्पेसिफाइड, जो क्वेश्चन में मेंशन है, refers to the concentration of substance in the diet rather than just the amount consumed। तो डाइट में कितना है आपकी, ये मैटर करेगा। तो इट बेसिकली डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, जो मैंने आपको बताया। तो इसीलिए इसका नाम बायो ट्रांसफर फैक्टर या बायो एक्युमुलेशन फैक्टर या बायो मैग्निफिकेशन फैक्टर रखा गया। तीसरी टर्म तो सिंपल है, जिसमें आप पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे ऑक्टेनॉल टू वाटर, केओडब्ल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले एक आया हुआ है केओडब्ल्यू का, बहुत पुराने टाइम में। तो रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू टू इमिसिबल स्पेसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑक्टेनॉल वाटर को लिखते थे केओडब्ल्यू, है ना, केओडब्ल्यू पार्टीशन कोफिशिएंट। तो इसमें ऑक्टेनॉल हो गया, वाटर हो गया। तो इसमें क्या ये रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता था? ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन ऑक्टेनॉल टू दैट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये इसको रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑक्टेनॉल आपको पता ही है कि जो ऑक्टेनॉल है वो क्या होगा, C8H17OH, ये ऑक्टेनॉल है आपका। ठीक है ना, ऑक्टेन का जो अल्कोहल है वो है ये। तो इज अ कॉमन मेजर ऑफ द केमिकल हाइड्रोफोबिसिटी टेंड टू एक्युमुलेट इन द लिपिड्स रिलेटेड टू द बायोअवेलेबिलिटी बाय एक्युमुलेशन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये केओडब्ल्यू आपका ज्यादा है तो मतलब ऑक्टेनॉल में आपकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और वाटर में कम है। अगर ये कम है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और ऑक्टेनॉल में कम है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक पेस्टिसाइड वाला क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है। और लास्ट टर्म जो आपको मेंशन करके दिया गया है गाइस, टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन। ये तो सिंपल है कि कोई भी पोल्यूटेंट या टॉक्सिकेंट कितनी क्वांटिटी में है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन, राइट। तो टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन उसको हम कह देते हैं। तो दिस सिंपली refers to the amount of toxic substance present in a given medium, tissue, water, food, किसी में भी हो, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू कंसंट्रेशन एंड डाइटरी इनटेक, तो वो टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन होती है कि कितना वो सब्सटेंस है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन की लाइंस को बड़े ध्यान से पढ़ना था। 56 में ये देखिए क्या कह रहा है, रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन एनिमल टिश्यू। ये एक लाइन हुई। ठीक है, कि किसी एनिमल टिश्यू में जो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है कोई फूड, उसकी बॉडी के अंदर कितना है। जैसे मान लीजिए आप या मैं कुछ खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कितना है। तो रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू द एनिमल टिश्यू। और दूसरी लाइन इसको समझने में और हेल्प करती है, एंड इट्स डाइट डेली डाइटरी इनटेक ऑफ ए टेरेस्ट्रियल एनिमल। बात समझ रहे हैं? तो जितना डीडीटी उस एनिमल की बॉडी के अंदर होगा, लेट अस सपोज करिए कि शेर ने खाया हिरन को, तो हिरन की बॉडी के अंदर जितना डीडीटी था वही तो ट्रांसफर होके आएगा शेर की बॉडी के अंदर। तो दैट्स वाई इसका नाम हमने कहा है बायो ट्रांसफर फैक्टर। ये समझने में कुछ लोगों को गलती हो गई यहाँ पे ना। बायो ट्रांसफर फैक्टर जो होता है वही बायो एक्युमुलेशन होता है, वही बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन इज अ रिजल्ट ऑफ बायो एक्युमुलेशन। तो ये फूड चेन की टर्म्स में बात कर रहा है। ठीक है, ये फूड चेन की टर्म्स में बात कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कह रहा है ना
इट्स डेली डाइटरी इनटेक ऑफ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, कि जो एनिमल को वो खा रहा है उसकी बॉडी में कितना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका गाइस, वो सिंपली बायो ट्रांसफर फैक्टर ही होगा। इसको बायो ट्रांसफर फैक्टर भी बोल सकते हैं आप इसको बायो एक्युमुलेशन फैक्टर बोल लीजिए, बायो मैग्निफिकेशन फैक्टर बोल लीजिए, एक ही बात है। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी दाएं बाएं आपको अपीयर हो सकता है। क्लियर है, जल्दी बताइए। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 57। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। ये भी क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये मैं बार बार आपको पढ़ाता ही हूँ एल्बिडो, तो ये क्वेश्चन तो नहीं जाना चाहिए था। और मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कैसे इसको पिक करता, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, आपकी अप्रोच थोड़ी सी गलत हो जाती है। एल्बिडो हम दसियों साल से पढ़ते आ रहे हैं, और क्योंकि एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज मैंने ही लिया है, तो मुझे पता है कि एल्बिडो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर बात यह है कि क्या सबको क्वेश्चन ठीक से पढ़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 57 को अगर आप देखेंगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एल्बिडो ग्रेटर देन द ग्लोबल एवरेज। अब ये तो बात आ गई कि भाई क्या ग्लोबल एवरेज वाली आपको एल्बिडो पता है कि टोटल जो अर्थ की एल्बिडो है, ग्लोबल एवरेज जो है वो करीबन करीबन 33% के आसपास होती है। इसको अगर हम ऐसे करें 0.33, या कुछ बुक्स में इसको 30% भी लिखा हुआ है, नो डाउट। तो 0.30, ये दोनों ही आपको डाटा मिलेगा। तो अब आपके लिए एक बात ये जानने वाली हो गई कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो मैंने डाटा दिया है वो आपका ज्यादा है ग्लोबल एवरेज से। तो मेरे माइंड में ये बात तो पक्का आएगी कि भाई जो आपकी आइस है वो तो हर केस में ज्यादा है, तो ए तो होना ही चाहिए। क्लाउड की एल्बिडो भी, क्योंकि क्लाउड व्हाइटिश होते हैं तो उनकी ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेटस क्लाउड की भी ज्यादा होगी। तो ए बी सी तो उस ऑप्शन में होना ही चाहिए हर हाल में, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि तीनों वाइट है, ये ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होंगे। मतलब अगर मुझे कुछ भी नहीं पता था तो मैं आइडिया कैसे लेता, आइस तो होगी, क्यूमुलस क्लाउड भी होगा, स्टेटस क्लाउड भी होगा। लेकिन क्योंकि डार्क और वेट सॉइल है, तो ये मेरी ग्लोबल एवरेज से ज्यादा नहीं होगी। फॉरेस्ट भी ग्लोबल एवरेज से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो यहां मैं देखता तो मुझे समझ में आता कि कुछ डाटा की लॉजिकल मैं लगा कैसे सकता था, कि अगर मुझे डाटा पता हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जी 1 ही है आइस की तो ऑलमोस्ट, तो अब हम डाटा को डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो डाटा हमने डिस्क्लोज करना चालू किया गाइस, तो आप देख सकते हैं एल्बिडो, आपको पता ही है कि इट्स रिफ्लेक्टिविटी, कितना सनलाइट आप रिफ्लेक्ट करेंगे टू दैट ऑफ स्ट्राइक, जितना आपका स्ट्राइक करता है उसके रेशो में आप कितना रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एल्बिडो इज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ सरफेस, हाउ मच सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड, द ग्लोबल एवरेज इज 30%, जो मैंने बोला। कुछ बुकें 33% भी लिखती है, तो 30% इज स्टैंडर्ड डाटा जो अर्थ का एल्बिडो है। अब आइस की बात करूं तो आइस का एल्बिडो वेरी हाई होता है, जनरली 60 to 90% होता है, पर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 90% के आसपास है, वो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। क्यूमुलस क्लाउड का 0.3 to 0.6 होता है, ये भी ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। और ये डाटा मैंने लिखवाया भी हुआ आपको जब मैंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में एल्बिडो पढ़ाया था। फिर स्टेटस क्लाउड की बात आती है, तो स्टेटस क्लाउड का अगर हम डिस्कशन लें तो इनका भी करीबन 0.5 के आसपास होता है, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन ग्लोबल एवरेज। डार्क वेट सॉइल जो होती है आपकी, उसका करीबन करीबन 0.05 से 15 के आसपास होता है, 0.15, 5 से 15%, तो ये लोअर है देन ग्लोबल एवरेज, तो ये भी ऑप्शन में से चला गया। फिर आपका अगला ऑप्शन आता है जी फॉरेस्ट, इसकी भी लो होती है 0.15 और लेस, लोअर देन द ग्लोबल एवरेज, तो ये भी ऑप्शन से चला गया। तो ऑप्शन में सिर्फ तीन ही कैंडिडेट खड़े रहे, ए बी और सी। तो करेक्ट आंसर मेरा ए बी सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, विच इज प्रेजेंट ओनली इन वन ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बताइए क्या था? कुछ नहीं था। लोगों को लगता है बस ऐसे ही कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, पर मुझे नहीं लगता कि उतने जोरदार क्वेश्चन टीचर पूछता है जितना हम बना देते हैं उसको। एक्चुअली क्या, हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफर होती है।
अप्रोच पे बहुत मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या अपनी स्ट्रेंथ पे अप्रोच कर रहे हैं या फिर ऐसे ही हौच पौच मैनर में अप्रोच कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है, एल्बिडो पहले भी पूछा गया, अभी भी पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट नहीं डेविएट हो रहा है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया। और ऐसा नहीं है कि आइस या क्लाउड की एल्बिडो पहले नहीं पूछी गई या फॉरेस्ट की नहीं पूछी गई, वेट सॉइल की नहीं पूछी गई। इसीलिए मैं कहता हूं यू शुड रीड द सेलेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ 2025 से लेके 2019 तक वेरी केयरफुली। जो इतना एडिशनल लिटरेचर हमने जनरेट किया है, जो क्वांटा ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें है, बड़े रेयर चांस है कि टीचर उससे बाहर जाएगा। और आपकी चारों बुकलेट, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर टीचर जाएगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 58। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। देखिए प्रेशर होता है, बट प्रेशर ऐसे नहीं लेना ना कि पढ़ ही नहीं रहे उस क्वेश्चन को ठीक से, वैसे प्रेशर का क्या काम है। ठीक है, वैसे प्रेशर का कोई काम नहीं है भाई। आपको 75-70 क्वेश्चन ठीक करने को कह रहे हैं, 100 में से 100 लाने को नहीं कह रहे। ठीक है ना। तो वो आपको पकड़ना है आराम से, ज्यादा वो नहीं दिखाना। ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है और ये न्यूक्लियर से है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। मैंने पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया ये तो पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, ध्यान से देखिए। द मासेस ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली दिस मच। दोनों का मास लगभग लगभग इतना है, 1.67 10 टू पावर माइनस 27 kg। मास दिया हुआ, उसके बाद द मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इज अबाउट दिस मच। द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस फ्रॉम 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। सब कुछ लिख के दे दिया है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, 2 × 1 H1 प्लस, ठीक है, 2 × 0 N1 इज इक्वल टू 4He2। कैलकुलेशन करके देख लो, 2 2 4 और 2। ठीक है, तो बैलेंस है देखिए, मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों साइड से। लेकिन आपने एक चीज देखी कि दो दो एटम हो गए इनके। तो जब दो दो एटम हो गए और हीलियम का मास आपको कितना दिया हुआ है, 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, प्रोडक्ट में इतना दिया हुआ है। रिएक्टेंट में हम कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको हमें कितनी बार कर लेना है, 2 और 2 4 बार। ठीक है, क्योंकि 2 इसके लिए करेंगे, 2 × 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ऐसे ही 2 बार इसके लिए करेंगे। कर लिया। फिर हम देख लेंगे किसका सम ज्यादा है। जिसका सम ज्यादा है, जैसे अगर मैं इसको करूंगा, अगर मैं वैसे करूं मैनुअली कि कितना ये आएगा, तो 2 और 2 4, तो 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 6, ये इतना आएगा 6.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अब देखिए आप कौन ज्यादा है, वो भी 27 है, ये भी। तो बस इतना आपको करना था, यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालना था, जो निकल जाएगा 6.68 माइनस 6.64। ये चीज मुझे चाहिए थी, वैसे 0.04 बस। अब मेरे पास मास डिफेक्ट आ गया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 भी रहेगा। तो जैसे ही आपके पास मास डिफेक्ट आता है, वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी। अगर मास डिफेक्ट आपका केजी में होता है तो क्या फार्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का, अगर मास डिफेक्ट केजी में है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम कितना है आपका, 0.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 सी स्क्वायर, 3 × 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 नंबर। मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहीं से दिख रहा है, 9 × 36, 9 × 4 = 36। पर मैंने पूरा अपने बच्चे के लिए सारा ये सॉल्व किया है। पहले तो आपको ये इक्वेशन लिखनी थी, ये भी 12th क्लास का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स में पूछा जाता है बहुत बार, जेई वेई में। मैंने लिख ली। इक्वेशन लिखने के बाद मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई पता है। ठीक है, हमने सारा कैलकुलेशन किया, सब कुछ किया, मास डिफेक्ट निकाला। उसके बाद मास डिफेक्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, नीचे करके भी दिखाया हुआ है। तो मास डिफेक्ट यहाँ पे जब हमने किया तो 0 पॉइंट ये आया आपका निकल के, जो निकाल के दिखाया हुआ है। ये सब मैंने कराए हुए हैं अपने लेक्चर्स में, मतलब मेरे को स्टिल याद आ रहा है कि लास्ट सेशन में भी मैंने ये पढ़ाया था। तो ये मास डिफेक्ट आपका ये आ गया जो मैंने निकाला था, मास डिफेक्ट डेल्टा एम। बस उसके बाद फार्मूला लग जाएगा, आइंस्टाइन इक्वेशन, E = डेल्टा एम सी स्क्वायर।
और जैसे ही आप लगा देते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, एग्जैक्ट आंसर आएगा 3.6 10⁻12। बताइए इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या दें, एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो जब आपको पता ही है कि इतना आंसर इसका एग्जैक्ट आएगा, और ये हर बार आता है, बाइंडिंग एनर्जी तो ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, तो इसमें कुछ नया ही नहीं है, मैं तो ये कहूंगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत प्लेन क्वेश्चन है ये भी, आप ये मान लीजिए 12th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो 12th क्लास से ज्यादा की इसमें टेक्निकलिटी नहीं है गाइस। किसी को कोई डाउट है इसमें? इसीलिए आपको ये सोल्यूशन दिया जाता है कि भाई देखो, सीखो कि चीज होनी कैसे है। हम एबीसीडी वाले लोग नहीं है, हम लॉजिक वाले लोग हैं, कि लॉजिकली क्यों ऐसा हुआ। जब आप लॉजिक ढूंढना सीख जाएंगे साइंस में, तो उस दिन आप बहुत आगे चले जाएंगे, वेदर इट इज योर पीएचडी और एनी एग्जाम। लॉजिक जरूरी है, ठीक है। जैसे आप देखते हो +1 +2 में मार्क्स तो बहुत बच्चों के आते हैं, लेकिन जो लॉजिकली बच्चा करेक्ट होता है, जिसके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं, वही जेई मेंस, नीट या फिर जेई एडवांस क्वालिफाई करते हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पे है कि अगर आपके लॉजिक क्लियर है, डेप्थ है, तो हर इंटरव्यू, हर फॉरेन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, हर इंडियन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू और हर जेआरएफ आपका क्वालिफाई होगा श्योर शॉट। क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 58? या किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो बता सकते हैं जल्दी से। एनी वन हैविंग एनी डाउट, जल्दी बताइए। किसी को कोई डाउट है इसमें? इस डॉक्यूमेंट को बनाने का मीनिंग यही होता है कि लॉजिकली आप करेक्ट चलें, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी बुकलेट से है लकीली। तो मेरे को तो लगता नहीं, जब मैं देखता हूं तो मुझे तो याद आ जाता है कि भाई फुलाने पेज पे है। ये क्वेश्चन मैंने 1000 बार बताया है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे थे इसमें क्या कहते हैं आपका फॉसिलाइजेशन की, तब भी हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोल ग्रेड फॉर्मेशन फ्रॉम सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक रॉक। ये मिनरल और रॉक में भी रख सकता हूँ, एनर्जी में रख सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो जब हमने बात की थी, तो हमने ये बात की थी कि जो क्वालिटी ऑफ कोल होती है वो रिफाइन होती चली जाती है जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। जैसे मेटामॉर्फिज्म अभी हम पढ़ेंगे, मिनरल और रॉक चल रहा है जो मॉर्निंग वाले बैच में, उसमें आएगा। तो मेटामॉर्फिज्म की जब बात करते हैं, और हमने कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ कोल है आपका, तो ऑर्डर ऑफ कोल कुछ इस तरह का है कि जो सबसे अच्छा कोल है वो आपका, मैंने बताया भी था, ब्लू लिपस्टिक, है ना। तो एंथ्रासाइट है सबसे अच्छा, ठीक है। उसके बाद बिटुमिनस, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। फिर है सब बिटुमिनस, जो कि यहाँ दिया नहीं हुआ है। फिर उसके बाद लिग्नाइट, और लास्ट में साहब पीट है। अब ये ऑर्डर जो है, ये क्वालिटी ऑफ कोल जो है किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है? द क्वालिटी और एक्सटेंट ऑफ द मेटामॉर्फिज्म। जितना ज्यादा मेटामॉर्फिज्म अच्छा होगा, उतना ही कोल की क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ही कैटेगरी रिफाइन होगी। और यहाँ पे भी यही पूछ रहा है कि सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा चांसेस जो है एंथ्रासाइट के हैं। और सबसे पीछे कौन आएगा? पीट आएगा। तो सबसे पीछे अगर पीट आएगा, तो ए तो सबसे पीछे है दुनिया में। ऐसे में दो ऑप्शन तो आपके चले गए यहां से, एक तो ये चला गया और ये चला गया, क्योंकि दो में ही ए पीछे है। और सबसे आगे कौन आएगा? एंथ्रासाइट, मतलब बी सबसे आगे आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, और करेक्ट ऑप्शन सिर्फ आपका एक ही बचा। मतलब लॉजिकली भी आप कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री कैरेक्टर जो होता है वो होता है आपका पीट में। फिर बारी आती है लिग्नाइट की, फिर आती है बिटुमिनस, और फिर एंथ्रासाइट। तो आप अगर जब इसको अरेंज करेंगे इन क्वालिटी ऑफ मेटामॉर्फिज्म की जिस तरफ बढ़ रहा है, दिखा हुआ ना, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक में आपका जो एंथ्रासाइट है वो सबसे ज्यादा है, विच इज बी। उसके बाद आपका आ जाएगा बिटुमिनस, विच इज सी। उसके बाद आपका आ जाएगा लिग्नाइट, विच इज डी। और लास्ट में आपका आएगा ए, जो थर्ड चॉइस को मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में था क्या, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिंपलिस्टिक क्वेश्चन था। क्वालिटी ऑफ कोल, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कोल यही रिफ्लेक्ट करती है, जितना ज्यादा आप मेटामॉर्फिज्म की तरफ जाएंगे उतना ही कोल की क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी।
क्लियर है सबको? ये जल्दी बताइए। इसका तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ। हालांकि वी हैव गिवन एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कैंडिडेट कि आप पढ़ें। हमने सब यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, कि जैसे जैसे आप जाते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट टू बिटुमिनस। तो पीट जो है फर्स्ट स्टेज है कोल की, आपकी पीट जो है कोल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पार्शियली डिकेड आपका मटेरियल होता है जब आप पीट की बात करते हैं। तो पीट इज जस्ट, तो जब आप पीट की बात करते हैं तो पीट दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन एंड नॉट टेक्निकली कोल बट रादर एन accumulation ऑफ partially decayed plant material, waterlogged acidic condition, bog या swamp भी कहते हैं, राइट। मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है, लो कार्बन कंटेंट होता है, यूज एज फ्यूल बट अ लॉट ऑफ स्मोक कम्स आउट, लो एनर्जी आउटपुट होता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है एक तरह का, है ना। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, हम एनर्जी में दोबारा भी पढ़ेंगे जब आएगा तो कोल। फिर बारी आती है लिग्नाइट की, also known as brown coal. Lignite forms when peat is composed in heat and over. तो अगली स्टेज millions of year, higher carbon content, lower moisture content, peat still consider low grade coal, sedimentary rock है। फिर आती है आपकी बिटुमिनस, सॉफ्ट कोल बोलते हैं, ब्लैक कोल बोलते हैं, बिटुमिनस कोल बोलते हैं। कंप्रेशन और हीटिंग होगी तो फिर ये आपका बिटुमिनस में कन्वर्ट होगा एंड मच हायर कार्बन कंटेंट एज कंपेयर टू पीट एंड लिग्नाइट। ठीक है, और उसके बाद एंथ्रासाइट आता है फाइनली। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कोलिफिकेशन प्रोग्रेस फ्रॉम लेस मेच्योर लो कार्बन फॉर्म्स टू मोर मेच्योर एंड हाई कार्बन फॉर्म ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर विद टाइम। तो ये बड़ा इजी और अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन का लेवल जो है 11th 12th के लेवल का है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर्स लेवल से इसकी कंपैरिजन करूं। एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 60। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको बस आप लॉजिक अगर थोड़ा सा पकड़ लेते तो आप इसको कर पाते। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 60 में क्या होगा। मैं सबसे पहले इसमें डायरेक्शन बना देता हूं। ये अगर आप चाहते तो थोड़ा सा विंड रोज और ग्लोब की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। ये मेरा जी नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है साहब, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है। एक बात बताइए, रोज आप कहते हो कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सनराइज होता है यहां से, एंड सेट इन द वेस्ट, ये बोलते हो ना कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। ठीक है, तो ये माइंड में रखना था इस क्वेश्चन में, यही गलती कर गए बहुत सारे लोग। ठीक है, बट एनीवेज जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही माइंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करूं, क्या कहता है देखिए ध्यान से। It says the shortwave radiation flux incident on the wall of a hypothetical isolated cubical building placed at a latitude of 50 degree north। अब ये मजे की बात हो गई, ठीक है। ये मजे की बात हो गई कि इस तरह का आपका एक ग्लोब है, ठीक है साहब, ये ग्लोब है और 50 डिग्री नॉर्थ पे रखा हुआ है। ये ग्लोब है तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा इक्वेटर है, ब्लैक लाइन। और 50 डिग्री अगर मैं नॉर्थ कहूं तो यहाँ पे भी मेरी डायरेक्शन थोड़े बदल जाएगी, डायरेक्शन तो मेरी वही रहेगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर इस पे भी मैं लिखूं, ये मेरा नॉर्थ पोल है जी, ये मेरा साउथ है ना, ईस्ट इधर और वेस्ट उधर। ठीक है, अब क्या ये कहता है कि जी साहब यहाँ पे एक क्यूबिकल रख दिया मैंने 50 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो 50 डिग्री लैटिट्यूड कहने का मतलब क्या है, इससे कोई दुनिया थोड़े बदलेगी। ये लैटिट्यूड यहाँ होगा कहीं, नॉर्थ साइड में 50 डिग्री नॉर्थ मान लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लाके मैंने एक हाइपोथेटिकल क्यूबिकल बॉक्स रख दिया इस तरह का, ऐसा एक बॉक्स रख दिया, क्यूबिकल रहेगा। ये सब चीजें समझने की होती है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा लंबा चौड़ा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे एक क्यूबिकल आपने रख दिया ऐसे करके बना, नॉर्मल एक क्यूब है जो आपने रख दिया यहाँ पे। अब जब आपने ये क्यूब रख दिया,
तो 50 डिग्री नॉर्थ, पीक इन द मॉर्निंग पीरियड ड्यूरिंग समर सीजन, और गर्मी का टाइम है, और सुबह सुबह आप देखते हैं जैसे अब दिल्ली में हाल हो रखा है, सुबह सुबह ही ऐसा लगता है कि आग लग रही है बाहर। आप ध्यान देना है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये क्यूब आपने रख दिया है, इसको आप खड़ा करेंगे, ठीक है, तो वॉल इसकी किस डायरेक्शन पे फेस करेगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब सुबह का टाइम होगा, ठीक है, और फ्लक्स जो शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्लक्स है वो इंसिडेंट कर रहा है वॉल ऑफ हाइपोथेटिकल आइसोलेटेड क्यूबिकल बिल्डिंग प्लेस ऑन द लैटिट्यूड, तो ये जो जिस तरफ से आपकी लाइट आ रही है, इसकी वॉल इधर ही है भैया, ये इस तरफ से ही फेस करेगा, तो ये ईस्ट है, ईस्ट ही आपका फेस करेगा, ठीक है। ये बस समझना था इतना कि वॉल जो है कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगी। वॉल ऐसे खड़ी हुई है ना, तो ये ईस्ट में जाएगी, ये मेरे पास 3D कंपास नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, तो यहाँ पे ईस्ट होगा। इसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए यू कैन रीड द फॉलोइंग थिंग्स, और करके भी देख सकते हैं आप मॉडल्स में, ठीक है। तो एक तो आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैंने बताई यहाँ पे और जो मेंशन करी है, दैट इन द मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट एंड देयरफॉर द ईस्ट फेसिंग वॉल रिसीव द मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इन द मॉर्निंग, इसीलिए लिखा हुआ है वहां पे कि पीक करता है, मतलब मैक्सिमम आता है। तो 50 डिग्री नॉर्थ पे पीक कर रहा है तो मैक्सिमम आएगा, तो इन सन समर, इन समर द सन्स पाथ इज हाईली इन द स्काई एंड राइज नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रखा तो नॉर्थ ईस्ट ही प्राइम डायरेक्शन बनती है उसकी, ठीक है। बट स्टिल प्राइमरली फ्रॉम द ईस्ट, द वॉल दैट फेसेस द ईस्ट विल बी इल्यूमिनेटेड फर्स्ट एंड रिसीव द पीक रेडिएशन फ्लक्स इन द मॉर्निंग, उसी दीवार पे सबसे ज्यादा आएगा जो ईस्ट को फेस करेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ था कि पीक कर रही है, तो पीक तो वही करेगी ना जब ईस्ट में होगा। कुछ बातें और जो यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन है, शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्लक्स की जैसे बात हुई, दिस रेफर्स टू द सोलर रेडिएशन व्हिच इंक्लूड विजिबल लाइट, यूवी, इंफ्रारेड, peak in the morning period, so this is the crucial clue. Solar radiation is highest on the surface when the surface is mostly directly perpendicular to the sun's rays. सन की रेज उस पर परपेंडिकुलर जब पड़ेंगी तभी तो होगा ना। इन द मॉर्निंग एंड द सन राइज इन द ईस्ट, समर सीजन है तो नदर्न हेमिस्फीयर में 50 डिग्री इज लोकेटेड ड्यूरिंग द समर, द सन rises slightly north due to east and set slightly north due to west. However, the far wall receive the peak morning radiation and the orientation must align with the sun's path during the early path of the ray, तभी तो मैक्सिमम मिल पाएगा। तो cubical building at 50 degree north latitude, the building shape and latitude are context, but the key is the morning peak। ये जो था हिंट था इसमें कि मॉर्निंग पीक आके कहाँ मिलेगी, ये बिल्डिंग तो आपको पागल बनाने के लिए थी कि बिल्डिंग बना दी, मेन तो था इसमें पीक, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों ईस्ट है, क्योंकि उसने पहले लिख दिया। देखिए आ, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, मैंने बताया भी था कि राउंड्स में करना है पेपर, अटकना नहीं है किसी क्वेश्चन पे, जो आपको टफ लगे आगे मूव कर जाना है, क्योंकि मेरा टारगेट पूरे पेपर में से 70 क्वेश्चन है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मुझे ये पर्टिकुलर 70 करने हैं करेक्ट। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि घड़ी लगा के हमेशा प्रैक्टिस करो जब भी पीवाईक्यू करते हो। 1.2 मिनट से ज्यादा टाइम आप नहीं दे सकते, जो क्वेश्चन टफ लगे उससे आगे मूव कर जाओ। क्लियर है शिक्षा यादव? वो मैं बताऊंगा आपको पेपर से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, पर अभी के लिए तो यही गाइडेंस है कि आपको लटकना नहीं है किसी एक क्वेश्चन को पकड़ के, ठीक है। चलिए जी, आज हम सिर्फ ये यही तक करेंगे 60 तक, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग हुई है इस सेशन की, तो ये अभी चलाएंगे धीरे धीरे जिससे कि आप डाइजेस्ट कर सके क्वेश्चंस को, और जाने से पहले आपको ये सारा डिस्कस हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। हो सकता है कल मैं 15 भी कर दूं, तो दैट इज अ डिफरेंट टास्क, बट आई वांट एवरीवन टू डाइजेस्ट द थ्योरी और सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी डिस्कस। जितने जितने डिस्कस हो जाए वो आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, सीख लेने हैं अच्छे से, क्योंकि उससे रिलेटेड या उसके जैसा कोई क्वेश्चन मिले तो आपको करना है, आपको छोड़ना नहीं है गाइस, ठीक है। क्योंकि वन बाय वन जब आप देखेंगे सीखेंगे तभी बात बनेगी। यू आर वेलकम, मैथी को भी और अंजलि गुलानिया को भी, हीना को भी। चलिए जी, टेक केयर, सी यू गाइज एट 7 PM फॉर द एनर्जी क्लास। 7 बजे आपसे मिलेंगे, ठीक है। यू आर वेलकम मित्तल।
तो 7 बजे आप लोगों से मिलते हैं और ये डिस्कशन हमारा चलता रहेगा, डिस्कशन रुकेगा नहीं। अब मैं आप लोगों की सेवा में ही हूँ पूरे सुबह से शाम तक, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई आई विल टीच 24 आवर, नो इश्यूज फ्रॉम माई साइड। ठीक है, चलिए, टेक केयर।